Welcome to our channel Concept Builders by Neeraj Putadra. Do subscribe to our channel for latest videos. Hello friends, today we shall be discussing section 247 of Companies Act 2013. That is, this is the base section which gives the legality to the profession of RV. Alongside this, we will also be discussing about model bylaws and professional ethics. In total, you can expect at least 4 to 5 marks coming out of the today's discussion what we are going to have. So let's start our today's topic. It is very easy. There is not much difficult things in this sections, but what you need to do is you need to go through this at least twice or thrice because lot of MCQs come from here which are in middle of the lines itself. Okay, so answers are very straightforward, but because you would not have read the section in that much details, you will not be able to answer them. So my suggestion would be at least go through this video plus read this entire section 247 at least twice or thrice so that you can score maximum in the examination. So आइए start करते हैं आज का topic section 247. So point number 1 reads where a valuation is required to be made in respect of any property, stock, shares, debentures, securities or goodwill or any other asset herein referred as assets or net worth of a company or its liability under provision of this act. Why? What do you mean by under provision of this act? दिस एक्ट का मतलब हो गया कंपनीज एक्ट 2013. सो कंपनी लॉ में कहीं पे भी आपको प्रॉपर्टी का, स्टॉक का, शेयर, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, गुडविल या और कोई भी एसेट का वैल्यूएशन करना है अलोंग साइड नेटवर्थ ऑफ द कंपनी या फिर तो उसकी लाइबिलिटीज का, तो सेक्शन 247 ट्रिगर होता है एंड इट सेज दैट दैट काइंड ऑफ वैल्यूएशन shall only be taken place by a person with necessary qualification and experience and registered as a valuer in such manner on the such terms and condition as may be prescribed and appointed by audit committee or in absence of audit committee board of directors. So from here what MCQ you can expect? The first MCQ you can expect is who will appoint a valuer. So the answer will be in case if there is an audit committee, the audit committee will, and if there is no audit committee, then board of directors will. So what is important is any place where this particular section gets triggered, that is any place where Companies Act mandates you to do valuation of property, stock, shares, debentures and etc. There a registered valuer is the only person who can submit a valuation report. The valuer अपॉइंटेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल. सो आपके क्या क्या आपको ध्यान रखना है अब ये बताता है. मेक अ इम्पार्शियल ट्रू फेयर वैल्यूएशन ऑफ एन एसेट विच ही इज रिक्वायर्ड टू बी वैल्यू. मतलब आप जब भी वैल्यूएशन करेंगे आप पार्शियल नहीं करेंगे, आप ट्रू एंड फेयर वैल्यू करेंगे. एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस व्हाइल परफॉर्मिंग द वैल्यूएशन फंक्शन. मतलब आप खाली किसी ने आपको बोला कि यार मेरे को शेयर की वैल्यू 100 रुपए चाहिए, तो यू विल जस्ट नॉट ब्लाइंड फोल्डेडली गिव अ वैल्यूएशन ऑफ 100 rupees. You will perform your due diligences, you will check everything what you feel which is required for you to calculate the value of that particular asset. After performing your due diligence, also if your value is coming 100 rupees and what he was suggesting is also 100 rupees, then that is completely fine. But you should do your adequate due diligences before giving the final valuation. Make the valuation in accordance with such rules as may be prescribed. So rule 8 has been prescribed, which gives the guidelines that how a valuation has to be done, what kind of things should be there in a valuation report and all. We will read it in details in further slides. Point number D, not undertake valuation of any asset in which he has a direct or indirect interest or become so interested at any time during a period of 3 years prior to his appointment as valuer or 3 years after valuation of the asset has been conducted. तो यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको दो जगह 3 years है. एक तो यू कांट हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट बोथ, और अगर ही बिकम सो इंटरेस्टेड एट एनी ड्यूरिंग पॉइंट ऑफ टाइम
a period of 3 years prior to his appointment, मतलब आप अपॉइंट हुए उसके 3 साल पहले तक भी अगर आप कोई रिलेटेड पार्टी हो या फिर तो वैसी कोई डेफिनेशन में फॉल कर रहे हो तो आप असाइनमेंट नहीं ले सकते। एंड 3 years आफ्टर वैल्यूएशन ऑफ दैट एसेट भी अगर आप वहां पे रिलेटेड पार्टी हो जाते हो, देन यू हैव टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बिकम अ रिलेटेड पार्टी एंड नाउ you have direct or indirect interest in this particular asset. So you will have to give that disclosure if you become a related party after giving the report. If the valuer contravenes the provision of this section or rules made hereunder, the valuer shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 rupees, but which may extend up to rupees 1 lakh. मतलब आप सोच के देखिए, आप एक वैल्यूएशन रिपोर्ट साइन करते हो जिसकी आपको फीस लगभग 50 से 60 हजार रुपया मिलेगी, और अगर उसमें आपका कोई गलती पकड़ा जाता है विद इन दीज 3 क्लॉजेस, दैट इज दिस 3 A, B and C, अगर यहाँ पे अगर आपका कोई गलती पकड़ा जाता है तो यू कैन बी पनिश्ड बाय IBPI with a fees of 25,000 which can be extended up to rupees 1 lakh. Sorry, this will be imposed by Companies Act, not IBPI. If the valuer, ये point हो गया point number 3, provided that if the valuer has contravened such provision with intention to defraud the company or its member, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with a fine which shall not be less than 1 lakh but may extend to rupees 5 lakhs. मतलब आप सोच के देखिए कि अगर आपने सबसे पहले अगर कोई आपने एक मिस्टेक की, you did a mistake, if it was intentional or it was unintentional, अगर unintentional थी then you can be punished from 25 lakhs to 25,000 to 1 lakh. ओके, अगर आपकी मिस्टेक इंटेंशनल थी तब आपको क्या पनिशमेंट हो सकती है? आपको पनिशमेंट तब हो सकती है रुपीज 1 लाख से लेकर 5 लाख तक की, रुपीज 1 लाख टू 5 लाख तक की आपको पनिशमेंट हो सकती है, प्लस अगर वो चाहे तो आपको जेल भी भेज सकता है for 1 year, plus you can be sent to jail for 1 year also. So these are white collar prisoners, इसके लिए अलग जेल होती है, but you can be sent to jail also. So it is not a very simple kind of a profession. It attracts lot of monetary as well as jail kind of a liability. Where a valuer has been convicted under the subsection, he shall be liable to, मतलब आपको यहाँ पे अगर आप पॉइंट नंबर 3 में कहीं पे भी कन्विक्ट होते हो, देन यू शैल बी लायबल टू रिफंड द फीस रिसीव्ड. आपको जो आपने फीस भी कमाई थी वो भी आपको वापस करनी पड़ेगी. ऑल्सो पे डैमेजेस टू द कंपनी और एनी अदर पर्सन फॉर द लॉस अराइजिंग आउट ऑफ इनकरेक्ट और मिसलीडिंग स्टेटमेंट. मतलब आप सोच के देखिए, अगर आपकी इंटेंशनल मिस्टेक थी तो आपको 1 से 5 लाख रुपया फाइन लग सकती है, 1 साल की सजा हो सकती है, आपकी जो भी आपने फीस कलेक्ट की थी वो भी आपको रिफंड करनी है, प्लस आपके कारण किसी को कोई लॉस हुआ है वो भी आपको वापस करना है. तो इररिस्पेक्टिव आपने इंटेंशनल मिस्टेक की थी या अनइंटेंशनल मिस्टेक की थी, you will have to refund the fees alongside all the damages that the company or any other person might have incurred because of your inaccurate or misleading statement. So now we will go to the rules of section 247, that is the company's registered valuation and valuer rules to 2017. So first thing what we would like to discuss here, what is the difference between certificate of registration and certificate of recognition. So पहले समझते हैं certificate of recognition क्या होता है. Means the certificate of recognition granted to a valuation professional organization under rule 13 or 14 and the term recognition shall be considered according to registered valuer is a valuer recognized with registration authority under rule 7(6) of the carrying out valuation of asset belonging to class or classes of assets. So हमारे यहाँ पे there are two entities, one is IBBI and it has brought other facilitating entities which are called as registered valuer organization. Okay, so अगर आपको certificate of recognition क्या बोलता है, means the certificate of recognition granted
टू अ वैल्यूएशन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आरवीओ को जो सर्टिफिकेट ग्रांट होता है उसको हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन बोलते हैं। जो आरवी को, रजिस्टर्ड वैल्यूअर को जो ग्रांट होता है उसे हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो इट इज, देयर इज अ क्लियर डिफरेंशिएशन बिटवीन रजिस्ट्रेशन इज फॉर द आरवी, ओके, एंड रिकॉग्निशन इज फॉर द आरवीओ। अब पढ़ते हैं रूल 3, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूअर. So I am sure all of you would be aware of this because by now you have already enrolled for 50 hours and you would have given your documentation and proofs to your respective RVO. But it is important for us to go through the text so that it stays in our head and we are able to answer in the exam. What are the eligibility criteria? Any person practicing as a registered valuer is required to obtain certificate of registration. No person shall be eligible for registration as a valuer if. So please mind, this is a negative definition. तो ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा. He has not passed the valuation examination in 3 years preceding to the date of valuation. मतलब आपको 3 साल का टाइम पीरियड मिलता है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए. अगर आप 3 साल के अंदर कंप्लीट नहीं करते then you will have to reappear for the exam. Does not have requisite qualification and experience. मतलब आप जिस क्लास का एग्जाम आप दे रहे हो, वेदर यू हैव रिक्विजिट क्वालिफिकेशन फॉर दैट क्लास और नॉट, यू विल हैव टू डेमोन्स्ट्रेट. अगर आपका नहीं है तो आप नहीं बन सकते हो. इज अ माइनर, इज ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब अगर आप 18 साल के नीचे हो, यू आर बिलो एज ऑफ 18 और यू आर ऑफ एन अनसाउंड माइंड. अनसाउंड माइंड मतलब आप पागल हो या फिर तो आपको किसी भी डॉक्टर्स ने सर्टिफाई किया हुआ है दैट यू आर नॉट ऑफ अ स्टेबल माइंडसेट. In that particular case, you will be termed as unsound mind. Is an undischarged bankrupt or has applied for bankruptcy. मतलब सर देखिए, एक चीज मान के चलिए, both RV as well as IP examination, one of the very key fundamental of them is that अगर आपके पॉकेट में पैसे नहीं है तो आप दूसरे की सेवा नहीं कर सकते. मतलब if you are yourself a bankrupt or you don't have money, you don't have a financial strength in that particular place, how will you be in a position to conduct valuation? आप कैसे एक टीम बनाओगे, कैसे आप वैल्यूएशन करोगे, कैसे आपके मतलब somewhere or the other it has been linked with your professionalism when it comes to bankruptcy as well as RV examination. So money is not important, but you cannot be an undischarged bankrupt, या फिर तो आपके आगे जो bankruptcy फाइल नहीं हुई होनी चाहिए. He is not a resident of India. It's very simple. अगर आप इंडियन रेसिडेंट नहीं हो तो आप नहीं कर सकते. तो बेसिकली अगर हमें यहाँ पे एक याद रखना है तो हम कैसे याद रखेंगे, अगर उस बंदे ने एग्जाम पास नहीं की है या फिर तो 3 साल लैप्स हो गए हैं, उसके पास एडिक्वेट क्वालिफिकेशन नहीं है, वो माइनर है या फिर तो वो पागल है, मतलब अनसाउंड माइंड है, वो बैंकरप्ट है या फिर तो उसके खिलाफ बैंकरप्सी की कोई केस चल रही है, एंड अगर वो बंदा इंडिया के बाहर है तो वो आरवी के लिए क्वालिफाई नहीं करता. और क्या क्या चीज है जिसमें वो क्वालिफाई नहीं करता? Convicted for an offense punishable with imprisonment of a period exceeding 6 months, a person remains disqualified for 5 years from the date of expiry of the sentence. Further, if the person is convicted for an offense and sentenced to imprisonment for a 7 years or more, he shall never be eligible. मतलब इस पॉइंट को आपको दो भाग में बाइफरकेट करना है. अगर आपको कोई भी कारण से इम्प्रिजनमेंट हुई है, अगर वो 6 महीने के कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, यू कैन बिकम अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर. But if your imprisonment was greater than 6 months, then you will not be allowed to become a registered valuer for a period of 5 years post that. Also, if the period of imprisonment was more than 7 years, in that case, you can never apply for being a registered valuer. Next point is not a valuer member holding certificate of practice of valuation professional organization. मतलब आपने कोई भी valuation organization के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तभी भी आप नहीं कर सकते. मतलब आपने एग्जाम पास कर ली, इसका ये मतलब नहीं कि आप वैल्यूएशन रिपोर्ट दे सकते हैं. आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. आपको आरवीओ के साथ एंड आईबीबीआई के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जब आपके पास सीओपी होगा तभी आप एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट इश्यू कर सकते हैं. इट इज not a fit and proper person
In determination of this condition, the registration authority may take into account various considerations, including but not limited to integrity, reputation, and character, absence of conviction and restraint orders. In case of partnership, the partnership shall not be eligible to be registered valuer if it or any of its partner have incurred any of the disqualification mentioned above. Majority of its partner practicing India are not registered valuer. सो लास्ट पॉइंट क्या बोलता है कि इट कैन आपको एक फिट एंड प्रॉपर पर्सन बनना है एंड फिट एंड प्रॉपर पर्सन बनने की डेफिनेशन के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज दिए हैं बट दे सेड दे विल नॉट बी लिमिटेड टू दिस. अगर इसको छोड़कर भी आईबीबीआई को कभी लगता है कि आप फिट और प्रॉपर नहीं हो, आप इम्प्रॉपर पर्सन हो, तब वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं. इसमें क्या है, आपकी इंटीग्रिटी, रेपुटेशन एंड कैरेक्टर, दैट इज आपके खिलाफ कोई केसेस नहीं होने चाहिए, आप बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, आपका प्रोफेशनल एक रिस्पेक्ट होना चाहिए. आपका अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म में हो तो आपका कोई भी पार्टनर, अगर ऊपर में ये सारी जो कंडीशन हमने एलिजिबिलिटी पढ़ी उसमें कोई भी पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो रहा है, देन योर एंटायर पार्टनरशिप फॉर्म कैन नॉट रजिस्टर. ओके, एंड लास्टली मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फॉर्म शुड बी प्रैक्टिसिंग रेसिडेंट्स इन इंडिया. मतलब आपके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स जो होने चाहिए पार्टनरशिप फॉर्म के, वो इंडिया के रेसिडेंट्स होने चाहिए एंड दे शुड बी रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स. अब आते हैं क्वालिफिकेशंस. So basically, as all of us know, there are three classes of asset what we have: land and building, plant and machinery, and SFA, that is securities or financial assets. We are here discussing majority about SFA. So हम लोग उसका बात करते हैं. कंपनी लॉज में उसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर आप ग्रेजुएट हो तो 3 साल, बैचलर्स हो तो 5 साल एंड पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. अब आप कोई मेरे को पूछ सकता है कि क्यों सर इसका एक्सपीरियंस का क्या जरूरत है. सर अगर एक्सपीरियंस आपके पास होगा ही नहीं तो आपको इन ग्राउंड्स पे जज कैसे किया जाएगा? इंटीग्रिटी, रेपुटेशन, कैरेक्टर, ये सब चीज पे जज करने के लिए आपका कोई बेस है कि नहीं है. आप अभी खाली एक ग्रेजुएट हुए तो आप एज इट इज यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ रिस्पेक्ट इन द मार्केट, यू डोंट हैव एनी रेपुटेशन, आपकी इंटीग्रिटी तो टेस्ट ही नहीं हुई अभी तक. इसीलिए ये देखा जाता है कि आप 3 से 5 साल अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस किया है तब तो आपकी इंटीग्रिटी, आपकी रेपुटेशन टेस्ट हुई होगी. एंड अगर वहां पे कोई डाउट है तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा. अगर वहां पे आप क्लीन निकलते हो, विच मोस्ट ऑफ अस वुड बी, देन आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा. रूल 5, एग्जामिनेशन. Examination, as we all know, examination is conducted by IBBI with alongside NISM. NISM is a body which helps us conducting this examination. Examination is a MCQ based examination. 100 मार्क का एग्जाम है, 60 पासिंग मार्क है. हर रॉन्ग आंसर जो आप करते हो उसके लिए 0.25 मार्क्स नेगेटिव भी जाता है. ओके, सो एंड वन थिंग व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज कि जो भी आपका सिलेबस चेंज होगा आपको 3 महीने पहले उसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि अब आपका सिलेबस चेंज हो रहा है. सो नाउ लेट्स रीड द एक्ट. व्हाट डज इट? अथॉरिटी शैल either on its own or through a designated agency conduct valuation examination for one or more classes for individual who possesses the qualification and experience in specified rule 4 and has completed their educational course as member of a registered valuer organization to test their professional knowledge, skill, value and ethics in respect of valuation. So basically आपको क्या क्या करना है ये पॉइंट को सफाइज करने के लिए, what all things you have to do? You have to first register with a RVO. From there you have to clear 50 hours of training. Once you get your membership, once you get your 50 hour certificate, then you can enroll in NISM, which is a designated agency for giving this particular examination. And after that, what are the parameters they are going to test test you in the examination? They are going to test your professional knowledge, skills, value and ethics in respect of valuation. Okay, so these things are going to be tested. This is a very point number 3 is the important clause. The syllabus, format and the frequency of valuation examination including qualifying marks shall be published on the website of the authority at least 3 months before the examination. So the best example is IP का एग्जाम का अभी सिलेबस चेंज हुआ था. 1 जनवरी से नया एग्जाम आने वाला था, तो बाय 1 अक्टूबर वो वेबसाइट पे आ गया था. तो सिमिलरली आरवी का एग्जाम के लिए भी कभी ऐसा कोई चेंज होगा
तो 3 महीने पहले आपकी वेबसाइट पे वो आ जाएगा। An individual who passes the valuation examination shall receive acknowledgement by of passing the examination. He can appear for n number of times in this particular examination. इसमें number of attempts पे कोई restriction नहीं है। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वैल्यूअर, मतलब अब आपने पहले आरवीओ से कोर्स कर लिया, आपने एग्जाम दे दी, आप एग्जाम पास कर गए, अब आपको जब रजिस्ट्रेशन करना है तो आप किस तरीके से करेंगे। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या है, आपको फॉर्म ए फाइल करना होता है विथ अ नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ ₹5,000। अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म आपको रजिस्टर करनी है तो आपको फॉर्म बी फाइल करना है विद अ नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ ₹10,000। अथॉरिटी क्या करेगा, अथॉरिटी 21 डेज के अंदर आपका एग्जामिन करेगा एंड अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं होगा तो वो आपको बताएगा। तो अथॉरिटी मे एग्जामिन द एप्लीकेशन एंड मे ग्रांट 21 डेज टू एप्लीकेंट टू रिमूव द डेफिशिएंसीज इफ एनी। मतलब अगर आपने जो एप्लीकेशन दी उसमें आईबीबीआई को लगता है कुछ गलती है तो आपको वो 21 डेज का टाइम देगा उस एप्लीकेशन को करेक्ट करने के लिए। अथॉरिटी में रिक्वायर एप्लीकेंट टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और क्लैरिफिकेशन विद इन दोस 21 डेज। इट्स वेरी सिंपल, अगर आपने से फॉर एग्जांपल आपने कोई एक डॉक्यूमेंट अटैच करना भूल गए आप, या फिर तो कोई डॉक्यूमेंट में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए था तो आपको 21 डेज दिया जाएगा जिसमें यू विल हैव टू रीफर्निश दोस डॉक्यूमेंट्स एंड गिव द क्लैरिफिकेशन। Authority may require the applicant to appear within 21 days before the authority in person or through its authorized representative for explanation or clarification required pursuant to application. That is कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई सीरियस मैटर है जहां पे your presence is required to clarify that particular matter, then IBBI might call you to give that particular explanation. So please याद रखिएगा, अथॉरिटी वर्ड जहां पे भी यूज होता है या बोर्ड वर्ड जहां पे भी यूज होता है उसका मतलब होता है आईबीबीआई। इफ द अथॉरिटी इज सो सेटिस्फाइड आफ्टर सच स्क्रूटिनी, इंस्पेक्शन और इंक्वायरी एज इट डीम फिट नेसेसरी that the applicant is eligible under this rule, it may grant the certificate of registration to applicant to carry out the activities of registered valuer for the relevant class or classes in Form C of Annexure 2 within 60 days of the receipt of application. That is to say, IBBI will take maximum time of 60 days and it will give you a final certificate if it is satisfied with all the documentation and protocols in Form C of Annexure 2. If after considering an application made under this rule, authority is of the prima facie opinion that registration should not be granted, it shall communicate the reason for forming such opinion within 45 days of receipt of the application, including the time given by it for removal of the deficiency pertaining to additional documents or clarification. That is to say, अगर कभी भी IBBI को लगता है कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं इशू हो सकता तो within 45 days of your application, that is it includes the 21 days of time for which was given to you for correction, उसको include करते हुए वो 45 days के अंदर एक ओपिनियन फ्रेम कर लेगा कि आपको वो सर्टिफिकेट ग्रांट नहीं करेगा। The application shall submit an explanation as to why its application should be accepted within 15 days of the receipt of communication under sub rule 7 to be enable the authority to form a final opinion. मतलब ये वाला जो सेक्शन में उन्होंने एक ओपिनियन क्रिएट किया है उसका 15 डेज के विद इन यू विल हैव टू आंसर देम दैट व्हाई यू शुड बी ग्रांटेड। मतलब उन्होंने पहले आपको एक बार 21 दिन का मौका दिया है, उसके बाद उन्होंने एक ओपिनियन फॉर्म किया एंड उसके बाद भी वो आपको वापस 15 दिन का मौका देंगे कि भाई आप अगर अपने पॉइंट्स को प्रूव करना चाहते हो, अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते हो तो आके कर लो। अगर उसके बाद सेटिस्फाई हो गई तो वो आपको सर्टिफिकेट दे देगी, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। आफ्टर कंसिडरिंग द एक्सप्लेनेशन इफ एनी गिवन बाय द एप्लीकेंट अंडर रूल 8, द अथॉरिटी शैल either accept or reject the application. The authority shall communicate its decision to applicant within 30 days of receipt of the explanation. मतलब यहाँ टोटल टाइम फ्रेम अगर अपने को देखना हो तो अगर अपने को सिंपल तरीके से लिखने का कोशिश करें तो आपको एप्लीकेशन डालनी है। अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप फॉर्म ए में डालोगे, अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म हो तो आप फॉर्म बी में डालोगे, आपका रजिस्ट्रेशन होकर आएगा फॉर्म
सी में। ओके, आपको फर्स्ट टाइम करेक्शन के लिए आपको मिलेगा 21 डेज। ओके, आईबीबीआई टोटल टाइम लेगा कितना, 60 डेज का। ओके, अगर उसका फर्स्ट ओपिनियन जो बनता है आपके अगेंस्ट में कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं देना है, फर्स्ट ओपिनियन वो 45 डेज के अंदर बनाएगा और यहां से वो आपको वापस 15 डेज देगा टू करेक्ट एनीथिंग। और ये सारा यहाँ पे आपने अपना सब डॉक्यूमेंट दे दिया, इससे विद इन 30 डेज के अंदर वो आपको फाइनल कम्युनिकेशन करेगा। ओके, तो दीज आर द बेसिक टाइमलाइंस फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब आते हैं रूल 7 पे, प्री रिक्विजिट कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या क्या प्री रिक्विजिट कंडीशन है रजिस्ट्रेशन? द रजिस्ट्रेशन एज अ वैल्यूअर इंपोजेस द फॉलोइंग ऑब्लिगेशंस। आपके ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं? ऑलवेज कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल, comply with the valuation standards, conduct valuation only for those assets and class which you have been registered. So अब ये पहला 3 पॉइंट को एनालाइज करते हैं हम लोग। पहला बात, आपको जो भी एक्ट के अकॉर्डिंगली आप वैल्यूएशन कर रहे हो उसके एक्ट के अनुसार आपको वैल्यूएशन करना है, आप उस एक्ट के एम्बिट के बाहर नहीं जाओगे। सेकेंड, आप वैल्यूएशन स्टैंडर्ड को कंप्लाई करोगे। अब आप कौन से वैल्यूएशन स्टैंडर्ड को कंप्लाई करोगे? आपके आरवीओ ने जो भी स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए हैं आप वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे। इंडिया में खाली आईसीएआई ने आईसीआई के स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट किया है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल अदर आरवीओज हैव अडॉप्टेड इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। तो जब तक और कोई नोटिफिकेशन नहीं आता हम लोग सब 99% अगर आईसीआई के थ्रू है तो आईसीआई का करेंगे, अगर हम लोग और कोई आरवीओ के साथ है तो हम लोग इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड को सफाइस करेंगे। 99% आईसीआई के एंड वैल्यू इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स आर ऑलमोस्ट सेम। सो अगर आपको इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड से भी आप कंप्लाई करते हो देन इट इज गुड इनफ। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे हमने डिस्कस किया कि इसमें 3 क्लासेस है, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, एसएफए। मैंने एग्जाम पास किए एसएफए की। कैन आई डू अ वैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी? आंसर इज नो, दैट्स अ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर आप कोई और क्लास का वैल्यूएशन कंडक्ट कर देते हैं तो आप गलत माने जाओगे, यू कैन नॉट डू इट। प्रायर परमिशन ऑफ रजिस्टरिंग अथॉरिटी while shifting its membership from one to the another, मतलब आपको एक आरवीओ से अपनी मेंबरशिप दूसरे आरवीओ में शिफ्ट करनी है तो प्रायर कंसेंट ऑफ बोथ द आरवीओज इज रिक्वायर्ड। एडुकेट स्टेप फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस रेज्ड बाय द क्लाइंट और रजिस्टर्ड अथॉरिटी। अगर आपके अगेंस्ट में कोई भी ग्रीवेंसेस आती है तो आप उसमें हेल्प करोगे, आप उसमें जो भी स्टेप्स लेने होंगे आप उसमें स्टेप्स लेकर हेल्प करोगे। आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करोगे। अगर आईबीबीआई कभी भी आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन कॉल अपॉन करता है देन यू विल प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। कंप्लाई विद द रिलेवेंट कोड ऑफ कंडक्ट विच मे बी एप्लीकेबल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, कंप्लाई विद रिलेवेंट कोड ऑफ कंडक्ट, बिकॉज जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन आपके अगेंस्ट में होगी तो आपको वहां कुछ भी बचा सकता है, तो वो है कोड ऑफ कंडक्ट। अगर आपने कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रहते हुए काम किया है तो ये मान लीजिए आपको कुछ नहीं होगा, बट अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट को ऑब्जेक्ट कर देते हैं, आप कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट में काम करते हैं, देन गॉड ओनली सेव्स। अलाउ only partner who is registered valuer for the class of asset that are being valued to sign and act on behalf of the firm। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने जो थर्ड पॉइंट में पढ़ा था कि वी कैन ओनली साइन द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द पर्टिकुलर एसेट क्लास इन विच वी आर रजिस्टर्ड विथ। अब अगर आपने पार्टनरशिप फॉर्म खोली है, आप लैंड एंड बिल्डिंग के एक पार्टनर वैल्यूअर के साथ आप पार्टनरशिप करते हो, आप एसएफए के हो, एक लैंड एंड बिल्डिंग का है, तो अगर लैंड एंड बिल्डिंग का कोई रिपोर्ट है तो क्या वो आप साइन कर सकते हो? आप बोलोगे सर पार्टनरशिप फॉर्म है तो कोई एक दूसरे का तो साइन कर सकता है। आंसर इज नो। आप तभी भी खाली एसएफए का ही साइन कर सकते हो, आप लैंड एंड बिल्डिंग का साइन नहीं कर सकते हो, दो यू गाइज इन पार्टनरशिप। आप दोनों पार्टनरशिप में हो, आप लैंड एंड बिल्डिंग और एसएफए के पार्टनर्स हो एक दोनों, आप प्लांट एंड मशीनरी का कोई असाइनमेंट नहीं ले सकते। लास्ट पॉइंट, कंप्लाई विद सच रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कंडीशन एज मे बी फ्रेम्ड बाय द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। तो जब जब आरवीओ एंड आईबीबीआई जो जो नई नई पॉलिसीज लेकर आता है वो हमें फॉलो करना है। तो ये जिस्ट है पूरा रूल नंबर 6 का। सो इंडिविजुअल के लिए फॉर्म ए 5,000 रुपीज, फॉर्म बी 10,000 फॉर फॉर्म्स। अथॉरिटी शैल वेरीफाई एंड कॉल अपॉन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वायर अ पर्सन टू बी प्रेजेंट इन देयर। अगर वो सब चीजें सेटिस्फाई होती है तो विद इन 60 डेज फॉर्म सी में आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगी।
अगर उसको नहीं सेटिस्फाई होती है तो विद इन 45 डेज वो एक ओपिनियन बनाएगी, जिसके बाद आपको और 15 दिन दिए जाएंगे अपना केस प्रेजेंट करने का। अगर आपका केस प्रेजेंट करने के बाद एंड एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद इफ authority is satisfied, it will grant you the certificate. If not satisfied, it will reject your application. Temporary surrender. A registered valuer may temporarily surrender his registration certificate in accordance with bylaws or regulations as the case may be of the registered valuer organization, and on such surrender the valuer shall inform the authority for taking such information on record. मतलब इसका टाइम पीरियड जनरली सारे बाइलॉज में 30 डेज का दिया हुआ है। आपको 30 डेज के अंदर अगर आपको टेम्पररी सरेंडर करना है कोई भी कारण से, ओके, तो यू हैव टू इन्फॉर्म योर आरवीओ दैट यू आर टेम्पररी सरेंडिंग इट। Registered valuer organization shall inform the authority if any valuer member has temporarily surrendered its membership or revived his or its membership after temporary surrender not later than 7 days from approval of the application of the temporary surrender or revival. मतलब आपने टेम्पररी सरेंडर करने के लिए एप्लीकेशन डाली या फिर तो आपने टेम्पररी सरेंडर किया हुआ था उसको रिवाइव करने के लिए एप्लीकेशन डाली, तो आपका जो भी कंसर्न आरवीओ है वो विद इन 7 डेज आईवीबीआई को इन्फॉर्म करेगा कि आपकी ऐसी कोई एप्लीकेशन आई है। Every registered valuer organization shall place on its website in a searchable format the names and the other details of the valuer members who have surrendered or received their revived their membership. The reason being, अगर आपने टेम्पररी सरेंडर की हुई है तो उस दौरान आप कोई भी वैल्यूएशन रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते। तो आप आरवीओ का ये फंडामेंटल वर्क में से एक है कि भाई अगर कोई ऐसा बंदा है जो टेम्पररी सरेंडर कर रहा है या फिर तो इसे सरेंडर किया था वो उसको रिवाइव कर रहा है, तो वो अपनी वेबसाइट पे उसकी इंफॉर्मेशन देकर रखेंगे कि कोई भी दूसरा आदमी जो वैल्यूएशन करवाने आ रहा है वो मिसलीड ना हो जाए। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ अ वैल्यूअर। वैल्यूअर शैल कंडक्ट वैल्यूएशन एज रिक्वायर्ड एज पर द एक्ट। सिंपल है ये पॉइंट। ट्रांजिशनल अग्रीमेंट, any person who shall be rendering valuation service under this act on the date of commencement of these rules may continue to render the valuation certificate services without certificate of registration under this rule up to 31st Jan 2019। मतलब ये एक जेस्टेशन पीरियड दिया गया था कि अगर आप ये प्रोफेशन में हो और आपने अभी तक आईवीबीआई की एग्जाम पास नहीं की है, आपने ऊपर वाले प्रोटोकॉल्स यूज करके अभी तक आप वैल्यूअर नहीं बने हो, तो आप मैक्सिमम 31 जन 2019 तक सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो। उसके बाद आप नहीं कर सकते, उसके बाद आपको एग्जाम पास करनी पड़ेगी एंड ऊपर वाले सारे क्लॉजेस को यूज करके अपना रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। अब आते हैं रूल 12, रिकॉग्निशन ऑफ वैल्यूएशन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन आरवीओ। तो जैसे हमने आरवी का देखा कि मतलब कैसे हम बन सकते हैं, मैं एज ए इंडिविजुअल में रजिस्टर्ड वैल्यूअर कैसे बन सकता हूं, अब हम लोग देखेंगे कि एक आरवीओ कैसे बन सकता है। व्हाट आर द सेट प्रोटोकॉल्स फॉर बिकमिंग अ आरवीओ। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए। आप सेक्शन 25 की कोई कंपनी होनी चाहिए एंड आपकी कंपनी शुड बी सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और अ सेक्शन 8 और सेक्शन 25 कंपनी जो भी है। Registered as a society under Societies Registration Act, set as a trust governed by Indian Trust Act। ये दोनों में अगर आप फॉल करते हो तो अब आपको पॉइंट नंबर 2 दैट इज यू विल हैव टू कन्वर्ट योर सोसाइटी और द ट्रस्ट इनटू अ सेक्शन 25 और सेक्शन 8 कंपनी, देन ओनली यू कैन बिकम अ आरवीओ। Conduct examination, what all things you will do? Conduct examinations before enrolling professionals as a member of organization, grant membership certificate, आप membership certificate करोगे, lay down the code of conduct for the members, provide continuous education and for the members, monitor and review the function including quality of the services of the valuer and its members, have a grievance redressal mechanism including conducting disciplinary प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मेंबर। मतलब सिंपल तरीके से आप एक स्कूल की तरह हो, अगर आप एक आरवीओ हो तो आप एक स्कूल की तरह हो, आप उनको मेंबरशिप दोगे, आप उनका नॉलेज इनहेंस करोगे, उनको 50 आवर्स की ट्रेनिंग दोगे, आप उनके अगेंस्ट में कोई डिसिप्लिनरी कंप्लेन आती है तो उसके अगेंस्ट में एक्शन लोगे, उन लोग का क्या स्टैंडर्ड्स होगा वो बताओगे, उन लोग कैसे डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, आप वो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट भी ले डाउन करोगे। अदर रिक्वायरमेंट दैट इज एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन condition etc valuations are similar exactly same as outlined in the valuation profession। मतलब हमने जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस
आर्मी के लिए समझा था, दैट इज ये वाला डायग्राम, इसके लिए एग्जैक्टली सेम है। ओके, खाली फॉर्म नंबर चेंज होते हैं और फीस चेंज होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो पूरा प्रोटोकॉल है कि नंबर ऑफ डेज का एंड ऑल दोस थिंग्स एग्जैक्टली रिमेन्स द सेम फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आरवीओ ऑल्सो, सो दैट यू कैन गो थ्रू व्हेन यू गेट द स्लाइड्स। ओके, बस खाली इसमें क्या है, आपका वहां पे जो फॉर्म ए और बी यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे और 5000 की फीस थी, वहां पे फॉर्म डी है और फीस आपकी ₹1,00,000 है। दूसरा पूरा का पूरा प्रोटोकॉल एग्जैक्टली सेम है, तो आई विल स्किप दिस पर्टिकुलर पोर्शन फॉर यू सो दैट वी डोंट एंड अप वेस्टिंग टाइम। और आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट फॉर्म ई में इशू होता है, वहां पे आपको फॉर्म सी में इशू हो रहा था, तो फॉर्म ई में। तो याद रखने के लिए देखिए, एक ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रहा है, ए बी सी डी ई करके। तो ए हो गया इंडिविजुअल का एप्लीकेशन, बी हो गया फर्म का एप्लीकेशन, सी हो गया इंडिविजुअल या फर्म का ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट, डी हो गया आरवीओ का एप्लीकेशन, ई हो गया आरवीओ का सर्टिफिकेट। सो दिस इज वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, व्हाट आर द कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन, मतलब आरवीओ की कंडीशन क्या होगी रिकॉग्निशन की, वो देखते हैं। The recognition granted under Rule 13 shall be subject to the condition that registered valuer organization shall at all time continue to satisfy eligibility requirements specified in Rule 12. That is, वो लोग हर बार Section 8 या Section 25 की कंपनी बन के रहेंगे, and all those conditions which were there, they will maintain it. Maintain the registered of valuer who are registered valuer which shall be publicly available, admit only individuals who possess the educational qualification and experience required in accordance with rule 4। मतलब वो 3 साल और 5 साल वाला जो क्लॉज था कि आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो आपको देखना है। आप पूरा एक मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन का लिस्ट मेंटेन करेंगे, अपनी वेबसाइट पे फ्लोट करके रखेंगे। मेक सच रिपोर्ट टू द अथॉरिटी एज मे बी रिक्वायर्ड बाय इट, अगर अथॉरिटी आईबीबी आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगती है, कुछ मांगती है, तो आप उसको दोगे। कंप्लाई विद द डायरेक्शन इंक्लूडिंग विद रिगार्ड टू द कोर्स ऑफ कंडक्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपको डायरेक्शंस मिलते हैं आप उसको कंप्लाई करोगे। ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी कॉन्ट्राविन और रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट विद गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड द बायलॉज specified in annexure 3 within a period of 1 year from the date of commencement of this rule if the organization referred in the provision sub rule 1। मतलब अगर आप ट्रस्ट हो या फिर, तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा था ट्रस्ट हो या वो, तो आपको 1 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है कि आपको विद इन 1 ईयर आपको सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट होना है एंड बायलॉज को फॉलो करना है। ओके, अब आते हैं कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। The authority may cancel or suspend the registration of a valuer or recognition of a registered valuer organization for violation of the provision of this act, any other law allowing him or to perform the valuation, these rules or any other condition of registration or recognition as the case may be as specified in Rule 17। तो अथॉरिटी कभी भी चाहे तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकती है अगर आप कोई भी क्लॉजेज इन दिस पर्टिकुलर एक्ट में कॉन्ट्रवीन करते हो, या फिर तो और कोई लॉ जो वैल्यूएशन को अलाउ कर रहा है वहां पे अगर आप कुछ कॉन्ट्रवेंशन करते हो तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। रूल 16 आते हैं, कंप्लेन अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर और रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आप एक आर्मी हो या फिर तो आप आरवीओ हो, अगर आपके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन आती है तो वो किस तरह से होगी। तो पहली बात, द कंप्लेन मे बी फाइल्ड अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर और अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन बिफोर द अथॉरिटी इन पर्सन और बाय पोस्ट और कुरियर along with a non-refundable fees of 1000। Okay, please remember, इससे एमसीक्यू आते हैं। in favor of the authority, and authority shall examine the complaint and take such necessary action as it deems fit, provided that in the case of the complaint against a registered valuer who is a partner of a partnership firm entity or the director of a company, the authority may refer the complaint to the relevant registered valuer organization and such organization shall handle the complaint in accordance with the bylaws। मतलब अगर आरवीओ के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन है तो आईबीबीआई खुद मैनेज करेगी। अगर आरवी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन है तब क्या कर सकती है आईबीबीआई, वो आरवीओ को बोल सकती है कि सर आप ही इसको कर लो अपने बायलॉज के अकॉर्डिंगली, और जो भी आप रिजल्ट नतीजा फाइनल करते हो वो हमें बता देना। रूल नंबर 17, प्रोसीड्योर टू बी फॉलोड फॉर कैंसिलेशन और सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिकॉग्निशन।
आप ये मान लो सर, आप इंडिया में हो तो आपके साथ कभी भी कोई चीज विदाउट अ प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं होने वाली है। अगर आपका अथॉरिटी आपसे आपका लेटर भी छीन रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन छीन रहा है, तो वो आपको पूरा मौका देगा अपना केस प्रेजेंट करने का। तो ये पर्टिकुलर रूल यही फॉर्मेट बताता है कि क्या होगा कि अगर आपके अगेंस्ट में कंप्लेन आती है एंड हाउ विल यू एक्ट based on the finding of the inspection or investigation or the complaint received or on material otherwise available on record. If the authorized officer is of the prima facie opinion that sufficient cause exists to cancel or suspend the registration of a valuer or cancel or suspend the recognition of the registered valuer organization, it shall issue a show cause notice to the valuer or registered valuer organization. मतलब अगर आपके खिलाफ कोई भी केस बनता है विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड्स, तब वो आपको एक शोकॉज नोटिस इशू करेगा। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिफर्ड इन सबसेक्शन 2 ऑफ रूल 1 ऑफ 12 which has been granted recognition, the authority officer shall, instead of carrying out the inspection or investigation, seek information required from RVO within time stipulated therein, and in case of a default, give one more opportunity to provide the information within specified time, failing which, or in absence of the sufficient or satisfactory information provided, either initiate the process under this rule or refer the matter to the सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब अगर आप आर्मी हो तो वो आपको एक और मौका देगा कि आप पहले उस चीज को करेक्ट करो। अगर आप नहीं करेक्ट करते हो तो आपके खिलाफ वो एक्शन ले सकता है, एंड अगर वो एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पे भी ली जा सकती है। The show cause notice shall be given in writing. Okay, so please note, show cause notice will always be in writing. What shall it include? This is very important for MCQ point of view. Okay, it shall include the provision of the act and rules which are being taken care while issuing this particular notice, the details of the facts, the details of the evidence to support the facts। मतलब वो बताएगा कि किस क्लॉज में आप अटक रहे हो, क्या फैक्ट्स है और उसके पास क्या प्रूफ है कि वो आपको इस पर्टिकुलर क्लॉज में अटका रहा है। ओके, एंड फिर और क्या मेंशन करेगा, द एक्शन और द डायरेक्शन दैट द अथॉरिटी प्रपोजेस टू टेक। मतलब अथॉरिटी क्या चाहती है, वो आपको बुला के पूछताछ करना चाहती है, आपके अगेंस्ट में कोई एक्शन लेना चाहती है, वो पूरा मेंशन करेगी। द मैनर इन विच द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड, मतलब आपको ईमेल से रिप्लाई करना है या तो इन पर्सन रिप्लाई करना है या तो डॉक्यूमेंट्स के कुरियर भेजने, वो मेंशन होगा आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। कॉन्सिक्वेंस टू द फेलियर टू रिस्पॉन्ड, अगर आप फेल करते हो रिस्पॉन्ड करने का तो आपके अगेंस्ट में क्या एक्शन हो सकती है, तो ये सारी चीजें उस नोटिस में लिखी हुई रहेगी। तो दीज आर द पार्ट ऑफ द नोटिस, एक एक अलग अलग पॉइंट्स लिखे रहेंगे कि आपको क्या क्या होगा आपके साथ, किस सेक्शन में आप गिरे हो, आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आप अगर रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो आपके साथ क्या होगा। द शो कॉज नोटिस शैल सर्व इन द फॉलोइंग मैनर, कैसे होगी, सेंडिंग इट टू द वैल्यूअर और द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन एट द रजिस्टर्ड एड्रेस बाय पोस्ट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन। मतलब वो आपको कुरियर भी भेज सकता है या ईमेल भी कर सकता है। द अथॉराइज्ड ऑफिसर शैल डिस्पोज द शो कॉज नोटिस बाय रिस्पॉन्डिंग ऑर्डर इन अडेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मतलब प्लीज रिमेंबर, रिस्पॉन्ड ऑर्डर से ही कर सकता है वो आंसर, एंड उसको नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल देने पड़ेंगे। मतलब अगर कोई कारण से मैं टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाया और मैंने उसमें मैसेज मेल कर दिया, उनको बता दिया कि भाई मेरे को कोविड हो गया था, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मैं 15 दिन बाद आकर आपको मिलता हूँ, so then IBBI will consider that because I have given a response stating the reason why I am unable to be present here. It will give a principle of natural justice before passing any order against me. द ऑर्डर ऑफ डिस्पोजल में क्या क्या एक्शन हो सकती है, एक, क्लीन निकल जाओ आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नो एक्शन। अगर आपका कोई छोटा मोटा गलती है तो वार्निंग दे दी जाएगी, अगर बड़ा गलती है तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो ये तीन चीजें हो सकती है अगर आपका जो भी शोकॉज नोटिस का नतीजा होगा। पॉइंट नंबर 6, एन ऑर्डर पास अंडर सब रूल 5 कैंसलिंग द रिकॉग्निशन ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन shall specify the time within which the member may take membership of another registered valuer organization recognized for the valuation। मतलब अगर किसी आरवीओ का रिकॉग्निशन कैंसिल हो गया, ओके, आप अगर सोच लीजिए आप XYZ आरवीओ के साथ रिकॉग्नाइज थे, अगर आज वो आरवीओ का ही रिकॉग्निशन को खत्म कर दिया है आईबीबीआई ने,
तो उन लोग उसमें प्रोटोकॉल बताएंगे कि किस तरीके से अगर मैं मेंबर हूं तो मैं दूसरे किसी आरबीओ में कैसे शिफ्ट करूंगा, वो मेरे को वो बताएंगे। द ऑर्डर पास अंडर रूल 5 shall be issued to the concerned person immediately and published in the website of the authorities. The order passed under Rule 5 shall not be effective until 30 days has been passed from the date of issue. मतलब 30 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा उस ऑर्डर को लागू होने के लिए जिस दिन से वो पास हुआ है। Any person aggrieved by an order of the authorized officer under Rule 5 may prefer an appeal before the authority. मतलब आपके पास ऑर्डर आने के बाद भी you can appeal to that order. That is why this 30 days का gestation period is given to you. अब रूल 18 पे आते हैं वैल्यूएशन स्टैंडर्ड एंड वैल्यूएशन रिपोर्ट। तो बेसिकली यू हैव टू फॉलो द वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स, आपको बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करना है, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन आपको पता होना चाहिए। तो ये हम लोग इस पर्टिकुलर उसमें नहीं कवर करेंगे बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम फॉर मी टू, इसके ऊपर मैं अलग से एक पूरा रिकॉर्ड करूंगा, अलग वीडियो। बट इसमें हम लोग रूल 18 कवर नहीं करेंगे ये पर्टिकुलर सेशन में। आप पढ़ने के लिए यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं उसमें डाल दूंगा अपने स्लाइड में। Rule 19, committee to advise valuation matters. So now there comes the part which is very important from exam point of view for 1 mark MCQ. The committee shall comprise of what all things, sorry. कौन कौन होगा वो कमिटी का जो वैल्यूएशन के लिए आपको रिकमेंडेशंस देगा। The chairman shall be the person of well versed with the valuation, accounting, finance, and one member nominated by the MCA. ओके, वन मेंबर नॉमिनेटेड, सॉरी यहाँ पे ये होना चाहिए था, एंटर होना चाहिए। मतलब एक चेयरमैन होगा, एक मेंबर एमसीए का होगा, एक मेंबर आईबीबीआई के बोर्ड का होगा, एक मेंबर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का होगा। अप टू 4 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे। अप टू 4 मेंबर्स हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। up to 2 members representing the industry and the other stakeholders nominated by the central government. मतलब टोटल कितने मेंबर होंगे, एक चेयरमैन हुआ, एक एमसीए का बंदा हुआ, एक आईबीबीआई का बंदा हुआ, एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का बंदा हुआ। फिर 4 मेंबर होंगे आपके, तो 4 और 4 8 मेंबर हो गए। तो 4 मेंबर कहां के होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। फिर और 4 मेंबर होंगे जो आपके आरवीओ को करस्पॉन्ड करते हैं, तो यहां तक 12 लोग हो गए। एंड और 2 मेंबर होंगे जो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टोटल में अराउंड 14 मेंबर्स की एक कमिटी बनती है which will be playing a role of advisory committee on valuation matters. ओके, जनरली ये इसकी टाइम फ्रेम क्या होगी, तो चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द कमिटी हैज अ टेन्योर ऑफ 3 years एंड दे शैल नॉट हैव मोर देन 2 tenures, मतलब 2 टर्म से ज्यादा उनको अपॉइंट नहीं कर सकते आप। ओके, so punishment and offences with the without prejudice to any other liabilities where the person contravenes any of the provision of these rules, he shall be punishable in accordance with the section 469 of the act. मतलब आपने देखा था हमने जब ये 247 स्टार्ट की तो 247 में कुछ कुछ पनिशमेंट दी हुई थी, वो तो आप पे लगेगी ही लगेगी, प्लस सेक्शन 469 की पनिशमेंट भी आपके ऊपर लगने वाली है। अब आइए रूल 21 की पनिशमेंट। If any report, certificate or document required by or for purpose of any of the provisions or the act made thereunder or these rules, any person makes a statement which is false in any material particular knowing it to be false or omits any particular facts knowing it to be material, मतलब अगर आपने कुछ गलत बोला जब आपको जानकारी थी सत्य की, तब आपके ऊपर रूल 21 भी लागू हो जाएगा। मतलब 247 की पनिशमेंट, 469 की पनिशमेंट एंड रूल 21 की पनिशमेंट, 3 पनिशमेंट आपके ऊपर लग सकती है अगर आप कुछ गलती करते हो तो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एनेक्चर 1 विच इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो आते हैं सबसे पहले एक एक करके इसको पढ़ते हैं। आपको इसको पॉइंट बाय पॉइंट याद रखना है क्योंकि इसमें से कहीं से भी कुछ पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है, ये 5 पॉइंट में से एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट दे देगा और बोलेगा ये किस क्लॉज के अंदर आता है। तो इसे आपका पहला क्लॉज है, पहला ब्रैकेट है आपका इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस, उसके अंदर 5 पॉइंट है। अब इसके अंदर भी कुछ पूछ सकता है वो क्वेश्चन, या फिर तो इसमें से कोई एक पूरी की पूरी लाइन उठा के पूछ सकता है कि ये किस बकेट को बिलोंग करता है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस ये क्या बोलता है, वैल्यूअर शैल इन द कंडक्ट ऑफ हिज बिजनेस फॉलो हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी एंड फेयरनेस एंड
in his or its dealing with his or his client of valuation। मतलब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, हर जगह his and its लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये एक इंडिविजुअल की भी बात कर रहा है एंड द पार्टनरशिप की बात कर रहा है, दोनों। मतलब वो आप हाई स्टैंडर्ड फॉलो करोगे, you will be honest, you will be straightforward, and you will be foresight also. As a valuer shall endeavor to ensure that it provides true and adequate information and shall not misrepresent any facts and situation। मतलब आप कभी भी कुछ फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट नहीं करोगे, वरना रूल 21 में आपके अगेंस्ट में फाइन लग सकती है। आप सच बोलोगे एंड आप एडुकेट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली ही एक्ट करोगे। A valuer shall refrain from being involved in any action that will bring disrepute to profession। मतलब आप देख लीजिए, it is not only your professional work but your other lifestyle also depends on this। आप बाहर जाके मारपीट भी नहीं कर सकते, बिकॉज आप मारपीट करोगे तो वो किसको डिसरिस्पेक्ट लेकर आएगा, आपके प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट लेकर आएगा, और अगर प्रोफेशन को डिसरिस्पेक्ट लेकर आएगा तो आप इस क्लॉज में अटक जाओगे। Okay, so a valuer shall refrain from being involved in any action that brings disrepute to the profession। A valuer shall keep public interest foremost while delivering the service। मतलब आप कभी भी गलत काम नहीं करोगे, बिकॉज आपके गलत काम करने से पब्लिक एट लार्ज, जिसके लिए आपने वैल्यूएशन किया है, उसका वैल्यूएशन गलत हो गया तो पब्लिक एट लार्ज विल ऑल्सो सफर। सेकेंड बकेट जो आती है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अ valuer shall render at all time high standard of services, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment। उसका दूसरा पॉइंट, a valuer shall carry out professional services in accordance with the relevant technical and professional standards। मतलब you will keep on enhancing your knowledge। आप ये नहीं बोल सकते मैंने एग्जाम पास कर दिया, मेरे को पढ़ने का क्या जरूरत है। A valuer shall continuously maintain professional knowledge and skills to provide competent professional services बेस्ड ऑन अप टू डेट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो जो वर्ड मैंने बोल्ड किए हैं उस सब पे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, ये पूरी लाइन दे दी जाएगी और अप टू डेट वाला वर्ड को आपको एमसीक्यूज में दे दिया जाएगा। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब इन द preparation of the valuation report, the valuer shall not disclaim the liability of its expertise to deny। मतलब आप कभी भी अपनी लाइबिलिटी को डिस्क्लेम नहीं करोगे। यू विल नेवर डिस्क्लेम योर लाइबिलिटी सेइंग कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। अगर आपने रिपोर्ट साइन किया है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है। अ वैल्यूअर शैल नॉट कैरी आउट एनी इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट इनसोफार एज दे आर इनकम्पेटेबल विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। ओके, तो आप क्लाइंट ने अगर आपको बोल दिया 100 रुपए का वैल्यूएशन लाइए, तो आप आईज क्लोज करके नहीं लाएंगे, आप उसको इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी और इंडिपेंडेंस के तराजू पे तोलेंगे और उसके बाद ही अपना वैल्यूएशन करेंगे। A valuer shall clearly state to his client the services that he would be competent to provide the services। मतलब सिंपल है, आपने आज तक 100 करोड़ की कंपनीज का ही वैल्यूएशन किया जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थी। आपको अचानक एक 500 करोड़ की सर्विस इंडस्ट्री का वैल्यूएशन करने मिल जाता है विच यू आर नॉट कॉम्पिटेंट, तो प्लीज शर्माइएगा मत। एक तरीका ये है, आप थोड़ा अपना नॉलेज इनहेंस करके पढ़ के कर सकते हैं तो कर लीजिए। अगर आपको लगता है फिर भी आपकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर है तो प्लीज आप उस काइंड की असाइनमेंट्स को मत टेक ओवर कीजिएगा, बिकॉज यू डोंट हैव एडिक्वेट कॉम्पिटेंसीज। ओके, इंडिपेंडेंस एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, तो ये थर्ड बकेट है, मेरे अकॉर्डिंगली सबसे इंपॉर्टेंट बकेट है। अ वैल्यूअर शैल एक्ट विथ ऑब्जेक्टिविटी इन हिज professional dealings by ensuring that his decisions are made without presence of any bias, conflict of interest, coercion, or undue influence of any party, whether directly conducting the valuation assignment or not। मतलब आप कभी भी बायस ओपिनियन नहीं देंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपका नहीं आएगा, मतलब अपनी रिलेटेड पार्टी का कोई वो नहीं करेंगे, आप कोई भी दबाव में आकर कोई वैल्यूएशन को कंडक्ट नहीं करेंगे। अब वैल्यूअर शैल नॉट टेक अप असाइनमेंट इफ ही और हिज रिलेटिव और एसोसिएट इज नॉट इंडिपेंडेंट। मतलब अगर आप खुद या आपके एसोसिएट्स भी इंडिपेंडेंट नहीं है तो आप वो असाइनमेंट हाथ में नहीं लेंगे। A valuer shall maintain complete independence in his professional relationship and shall conduct valuation independent of the external influences। मतलब आपके वाइफ के भाई का अगर वैल्यूएशन करना है तो आप नहीं करेंगे, बिकॉज वहां पे तो आपको बायस होना ही पड़ेगा। Okay, because it's your relatives valuation, so you will not conduct that kind of valuation। A valuer shall not deal in securities or subject companies after any time
when it has become aware of the possibility of his own association with the valuation in accordance to the सेबी प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग। मतलब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का सेबी के अनुसार वैल्यूएशन कर रहे हो, आप वो वैल्यूएशन रिपोर्ट देखकर आपको लगता है बहुत लुक्रेटिव है, मैं खरीद लेता हूँ शेयर, तो आप इनसाइडर ट्रेडिंग में फंस जाओगे, आप नहीं खरीद सकते हो शेयर। अ वैल्यूअर शैल नॉट इंडल्ज इन मैंडेट स्नैचिंग और ऑफरिंग कन्वीनियंस वैल्यूएशन। मतलब आपके क्लाइंट ने आपको 100 रुपया बोला, आपने कर दिया, आप वैसा नहीं करोगे, आप मैंडेट स्नैचिंग नहीं करोगे। एज एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर द वैल्यूअर शैल नॉट चार्ज सक्सेस फीस। मतलब आप परसेंटेज बेसिस पे वैल्यूएशन फीस नहीं रखोगे कि सर आपका वैल्यूएशन 100 करोड़ आ गया तो मेरी फीस 10%, 200 करोड़ आ गया तो मेरी फीस 50%, वैसे वैल्यूएशन नहीं होता, आपको एक फिक्स्ड फीस पे ही काम करना है। In such fairness of the opinion or independent expert opinion submitted by the valuer, if there has been proper engagement in an unconnected transaction, the valuer shall declare the association with the company ड्यूरिंग लास्ट 5 years। मतलब आप उस कंपनी के पहले ऑडिटर रहे हुए हो या फिर तो कोई प्रोफेशनल लेवल पे आपने उसके काम किया हुआ है, तो 5 साल का हिस्ट्री आपको देखना पड़ेगा, अगर कुछ है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप वो असाइनमेंट ले सकते हो। चौथा बकेट कॉन्फिडेंशियलिटी। द वैल्यूअर शैल नॉट use or divulge to other clients or any other party any confidential information about the subject company which has come to his knowledge without proper or sufficient authority unless through a legal or professional right or duty। मतलब आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है वो आप कभी भी किसी को ऐसे ही आंख बंद करके पास नहीं करोगे। ओके, यू विल नॉट डाइवर्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ वन क्लाइंट टू अनदर क्लाइंट। ओके, कभी भी नहीं करोगे। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। A valuer shall ensure that it shall maintain written correspondence with any decision making। ठीक है, आप सारा चीज का रिटर्न डॉक्यूमेंट मेंटेन करोगे, सारा चीज का एविडेंस आप अपने पास संभाल के रखोगे। A valuer shall appear, cooperate and be available for inspection and investigation carried out by the authority, any person authorized by the authority, the registered valuer organization with which he is registered और एनी अदर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी। मतलब आपने यहाँ पे पढ़ा कि आप कभी किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करोगे, बट यहाँ पे वो क्या बोलता है, अगर आईबीबीआई या फिर तो आरबीओ या फिर तो और कोई स्टैट्यूटरी बॉडी आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगता है, तब आप उसको वो इंफॉर्मेशन बकायदा प्रोवाइड करो। A valuer shall provide all information in the record as may be required by the authority, the said tribunal, appellate tribunal, the registered valuer organization with which he is registered। A valuer, while respecting the confidentiality of the information acquired during the course of the performing professional service, shall maintain proper working period for a period of not less than 3 years or such longer period as may be required in the contract of the specified valuation for production therefore। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपको 3 साल के लिए तो मिनिमम मेंटेन करने हैं। ओके, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा लिखा हुआ है जहां पे आपको ज्यादा टाइम के लिए मेंटेन करना है, तो आपको ज्यादा टाइम के लिए मेंटेन करना है। अगर आपका जिस केस के लिए आप जिस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए आपने वैल्यूएशन किया है और वो पर्टिकुलर केस आपका कोई और उठा लेता है, मतलब इनकम टैक्स में कोई केस चल रहा है जहां पे आपका रिपोर्ट पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जब तक वो इनकम टैक्स का केस क्लोज नहीं होता तब तक आप वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करेंगे। सो मिनिमम ऑफ 3 years एंड मैक्सिमम टिल द डिस्पोजल ऑफ द केस। गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटलिटी वाला ब्रैकेट बहुत सिंपल है ये। अ वैल्यूअर शेल नॉट अ वैल्यूअर his relative shall not accept gift or hospitality which undermines or affects his independence। मतलब आप ऐसा कोई चीज नहीं कर लेंगे या देंगे जिससे आपका इंडिपेंडेंस सफर करता है। आप कभी भी कोई भी पब्लिक सर्वेंट को कोई घूस खिलाने का काम नहीं करेंगे। आई एम यूजिंग अ वेरी रफ वर्ड बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस पर्टिकुलर क्लॉज मीन्स कि आप कभी ना घूस खाएंगे ना घूस देंगे। रेम्यूनरेशन एंड द कॉस्ट। A valuer shall provide services for remuneration which will be charged in a transparent manner। मतलब आप जब भी अपना असाइनमेंट देंगे तो आप जो अपना फीस का कोड देंगे वो डे 1 पे आप फिक्स करके रखेंगे, वो कोई परसेंटेज बेसिस पे नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट मैनर एंड इट शुड बी इन रीजनेबल टू द वर्क व्हाट यू आर गोइंग टू कंडक्ट। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए आप 4 घंटे का काम के लिए 4 लाख रुपए मांग लो, वैसे नहीं। तो यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट कि आप जितना इनपुट डाल रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप पैसे ले रहे हो, दैट इज अपॉन यू।
occupation, employment, and restriction. A valuer shall refrain from accepting too many assignments. So now this is upon you how you define too many assignments. Okay, for a person it can be 2 assignments are also too many और 100 assignments are also not too many. Okay, तो ये आपको खुद को डिफाइन करना है कि क्या आपके लिए too many है. A valuer shall conduct business which in opinion of the authority or the registered valuer of a valuer shall not conduct business which in opinion of the authority or the registered valuer organization is barred. मतलब कोई भी ऐसा आप काम नहीं करेंगे जो आरवीओ ने बार करके रखा हुआ है. ओके, अब आते हैं मॉडल बायलॉज क्या बोलता है. व्हाट आर द मॉडल बायलॉज? सो मॉडल बायलॉज आर टू बी अडॉप्टेड बाय ईच एंड एवरी आरवीओ. इट विल बेसिकली टॉक अबाउट योर स्ट्रक्चर. आपका स्ट्रक्चर किस तरीके होगा. तो इसको हम लोग बहुत क्विकली पढ़ेंगे. ओके, सो इसमें क्या क्या बोलता है. नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन अनलेस ही इज अ सेक्शन 8 कंपनी. सो ये हमने ऑलरेडी रूल्स में पढ़ लिया है ये वाला पॉइंट कि सेक्शन 8 कंपनी होना जरूरी है. अगर ट्रस्ट या सोसाइटी है तो कितना टाइम दिया जाएगा आपको कन्वर्ट करने के लिए? आंसर विल बी 1 ईयर. द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैरिंग ऑन द फंक्शन ऑफ आरवीओ अंडर द क्लॉज ऑफ 213 मतलब 2013 मतलब आपका सोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आरवीओ ही की तरह काम करना. इट शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया. नॉट मोर देन 49% of the shares are held directly or indirectly by person resident out of India. मतलब ये दोनों पॉइंट अगर देखें तो कहीं ना कहीं लिंक्ड है. कंट्रोल में नहीं होना चाहिए. इंडिया में हम लोग कंट्रोल को डिफाइन करते हैं मोर देन 51%. इट शुड नॉट बी अ सब्सिडरी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट थ्रू मोर देन 1 लेयर. ओके, मतलब एक लेयर मैक्सिमम होना चाहिए होल्डिंग सब्सिडरी का. होल्डिंग सब्सिडरी बन रही है तो वो नहीं अलाउड है, बट होल्डिंग एंड सब्सिडरी पे है तो चलेगा. इटसेल्फ its promote its director and the person holding not more than 10% of the share capital are fit and proper person. मतलब 10% जितना लोगों ने होल्ड किया है, दो शुड बी फिट एंड प्रॉपर पर्सन भी होने चाहिए. Itself, its promoter, its director and the person holding more than 10% of its share capital are fit and proper person. मतलब 10% से ज्यादा जिन्होंने भी होल्ड करके रखा हुआ सारे फिट और प्रॉपर पर्सन के कैटेगरी में आने चाहिए. Registered valuer organization to have bylaws. The registered valuer organization shall submit to its authority its bylaw along with the application for the registration as a registered valuer organization. मतलब हमने जो देखा था वो फॉर्म डी में फाइल करते हैं. फॉर्म डी के साथ उन लोग अपने बायलॉज भी देंगे. Bylaws shall be provided in the for the all the matters specified in the model bylaws in part 2. तो मॉडल बायलॉज दिए हुए हैं आईबीबीआई के. आपको उसमें जो भी लिखा हुआ है वो सबको एज इट इज इनकॉर्पोरेट करना है. द बायलॉज शैल एट ऑल टाइम बी कंसिस्टेंट विद मॉडल बायलॉज. द रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन शैल पब्लिश द बायलॉज, द कंपोजिशन ऑफ ऑल द कमिटीज फ्रेम्ड अंडर इट एंड अदर पॉलिसीज क्रिएटेड अंडर द बायलॉज इन ऑन इट्स वेबसाइट. तो मतलब आप किसी भी आरवीओ की वेबसाइट पे जाएंगे आपको बायलॉज बकायदा मिलेंगे. अमेंडमेंट ऑफ बायलॉज, अगर आपको कुछ भी अमेंडमेंट करना है तो आप कैसे करेंगे बायलॉज में? बहुत इंपॉर्टेंट है. द गवर्निंग बॉडी मे अमेंड द बायलॉज बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय वोट्स इन फेवर बीइंग नॉट लेस देन 3 times द वोट इफ एनी कास्ट अगेंस्ट. मतलब 3 times फेवर में होने चाहिए अगेंस्ट के, मतलब उतने वोट्स आपके हो तो ही आप कर सकते हो. द रेजोल्यूशन पास्ड इन अकॉर्डेंस विद द सब बायलॉ 1 shall be filed with the authority within 7 days. मतलब आपने यहाँ पे जो रेजोल्यूशन पास किया जहां पे आपके वोट्स इन फेवर वर 3 times द वोट इन अगेंस्ट, वो वाले जो आपका रेजोल्यूशन है वो आप 7 दिन के अंदर आप आईबीबीआई के साथ अथॉरिटी के साथ फाइल करोगे. द अमेंडमेंट टू द बायलॉ शेल come into effect on the 7th day of the receipt of approval unless otherwise specified by the authority. The registered valuer organization shall file a printed copy. यहां तक आप ऑनलाइन भेज रहे थे आईबीबीआई को, 15 दिन के अंदर आपको प्रिंटेड कॉपी भी भेजनी है. 7 दिन के अंदर अप्रूवल मिलेगा आपको उस अपनी वेबसाइट पे चेंज करने का. आपने जो रेजोल्यूशन दिया आपको 7 दिन के अंदर फाइल करना है और प्रिंटेड कॉपी आपको 15 दिन के अंदर आईबीबीआई में जमा देनी है. कंपोजिशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी, हमने ऊपर में जो गवर्निंग बॉडी पढ़ा था वो था आईबीबीआई का गवर्निंग बॉडी. ओके, अब हम पढ़ते हैं आरवीओ का गवर्निंग बॉडी. द गवर्निंग बॉडी शेल बी मिनिमम ऑफ, ओके, कितना मिनिमम लोग होंगे? मोर देन हाफ
ओके प्लीज जो जो बोल्ड किया बहुत ध्यान से पढ़िएगा. More than half of the directors shall be person resident in India at the time of their appointment and at all the time during their tenure. मतलब खाली appointment पे नहीं, all the time during their tenure more than half will be resident of India. फिर आता है not more than 1/4 of the directors shall be registered valuer. Okay, please ध्यान दीजिएगा word not more than 1/4. फिर आता है more than half of the directors shall be independent director at the time of their appointment and at all the time during the tenure of the directorship, provided that no meeting of the governing body shall be held without presence of an at least one independent director. मतलब कोई भी मीटिंग कंडक्ट करनी है तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना जरूरी है. ओके, तो अभी तक क्या समझे? मोर देन हाफ डायरेक्टर शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, नॉट मोर देन 1/4 ऑफ द डायरेक्टर शुड बी रजिस्टर्ड वैल्यूअर, मोर देन हाफ डायरेक्टर शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड मिनिमम एक डायरेक्टर जरूरी है कोई भी मीटिंग कंडक्ट करने के लिए. अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होगा? Independent director will be who has expertise in the field of finance, law, valuation and management, who is not a registered valuer. Please mind it, he cannot be a registered valuer. Who is not a shareholder of the registered valuer organization, who fulfills the requirement of subsection 6 of section 149 of Companies Act. तो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रूल है. वहां पे अगर आप क्वालिफाई होते हो तभी आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हो. The director shall elect an independent director as a chairman of the governing body. मतलब आपका चेयरमैन भी जो होगा वो होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. Explanation: more than half shall be rounded off to the next higher number. Okay, मतलब अगर आपका 11 है तो आपका 5.5 आता है more than half, तो 6 will be considered as the round off number. Not more than 1/4 shall be round down. मतलब अगर 1/4 आपका जैसे 1.25 या 1.6 आता है तो राउंड डाउन हो जाएगा 1 माना जाएगा वो. अब आते हैं बाइलॉज. These are very generic in nature. I think so I will leave this up to your wisdom to read this once by yourself. अभी तक हमने जितना पढ़ा है that is what will come in your examination. These are the model bylaws what should be there. ये आपकी जनरली सारी रिलेटिव की डेफिनेशन, आपका क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपके क्या ड्यूटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो सारा कुछ करता है. आपकी कितनी कितनी कमिटीज होती है, आपकी एडवाइजरी कमिटी में कौन कौन मेंबर बनेगा, आपका अदर कमिटी में कौन कौन मेंबर बनेगा, वो सबको यहाँ पे डिटेल किया गया है. तो एडवाइजरी कमिटी को देखते हैं. द गवर्निंग board may form an advisory committee of the member of the organization to advise it in any matter pertaining to development of the profession, conduct a standard of professional and ethical conduct, best practice relevant to valuation. The advisory authority may meet at such place and time as गवर्निंग बॉडी में प्रोवाइड. सो वैसे ही करके सारे दूसरे दूसरे जो भी कमिटीज आपको बनानी है विच आर नेसेसरी फॉर कंडक्टिंग द बिजनेस, तो वो आप बनाएंगे. अदर कमिटीज में क्या क्या होगी? 1 और मोर मेंबरशिप कमिटी आप बनाएंगे, एक मॉनिटरिंग कमिटी बनाएंगे, एक गवर्नेंस रिडर्सल कमिटी बनाएंगे एंड एक डिसिप्लिनरी कमिटी बनाएंगे. द चेयरमैन ऑफ ईच ऑफ दिस कमिटी shall be a independent director. So this is a very important 1 mark MCQ कि कौन बनेगा इन सब छोटी छोटी कमिटीज का चेयरमैन. इन सब कमिटी का चेयरमैन कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ही बन सकता है और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक ही कमिटी का चेयरमैन बनता है. तो मेंबरशिप कहाँ आते हैं यहाँ पे, फिर वो कैसे आप मेंबर बनाओगे किसी को, उसका प्रोसेस क्या होगा, मेंबरशिप लेटर कैसे आप दोगे, वो सारी चीजें फिर यहाँ पे मेंबरशिप सेक्शन में आपकी लिखी हुई गई है. आप एज अ आरवीओ कितना मेंबरशिप फीस चार्ज करना चाहते हो, यू हैव टू पुट इट देयर इन योर बाइलॉज इन द फॉर्म ऑफ एनुअल मेंबरशिप फीस. ओके, आप रजिस्टर ऑफ मेंबर्स प्रोवाइड करोगे, यू कैन पुट इट ऑन योर वेबसाइट. उसमें क्या क्या डिटेल्स मेंशन रहेगी वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है कि व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव टू मेंशन. आप जब क्वालिफाई होके आरवी बन जाते हो तो आपकी क्या ड्यूटीज होगी वो भी मॉडल बाइलॉज में डाली हुई है, बट यू विल हैव टू फॉलो द ड्यूटीज विच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर योर आरवीओ. आपके आरवीओ के बाइलॉज में क्या दिया हुआ है. हमने जो ऊपर डिसिप्लिनरी कमिटी का प्रोटोकॉल पढ़ा था वो सब भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके रखा होगा. ओके, ग्रीवेंस कैसे रिड्रेस करना है, किस तरीके की फॉर्मेट होनी चाहिए, ऑल दोस थिंग्स विल बी डॉक्यूमेंटेड इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विच इज कॉल्ड एज मॉडल बाइलॉज ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पे मॉडल बाइलॉज हमारे खत्म होते हैं. So this is all about today's session. I know this went little long, but मैंने ट्राई किया है इसको छोटे में करने का.
व्हाट इज माय सजेशन इज, आप लोग अभी ही ये वीडियो देखने के बाद जस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस एंटायर मटेरियल, रीड इट थरली एंड देन अगेन रीड इट वंस अगेन। एक बार आप 2 बार इसको पढ़ लीजिए और कोई भी बुक जो आपके पास अवेलेबल है उसके इस पर्टिकुलर सेक्शन के एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू score very nice marks in this particular topic. Please let me know your feedback and comments in the comment section. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you everyone.